Without any delay, मैं session को start करती हूँ by welcoming Rajiv Sharma, our mentor for today. So Rajiv की introduction में I just would like to say that he's a very learned gentleman. I know till now he's very, he has a great knowledge related to building businesses, developing market strategies for businesses. He's also an onboarded mentor at SAC. He's already helping our startups, our young entrepreneurs by giving 101, advices to them, by sharing knowledge through his podcast, through his mentoring session. He's the founder of Sage Titans. He is a certified sales leader with an experience over 17 years of demonstrating proven success in the ICT industry. So he is skilled in data analytics and AI, which is nowadays we are hearing a lot about AI tools and digital transformation. हम जब राजीव और हम मिले थे और जब उन्होंने स्टूडेंट्स को बताया था तो he was telling them कि आज की डेट में how it is important to transform their businesses into digital, to bring that digital transformation into their businesses. So with this objective, I hand over our session, today's session on day 2, value proposition. And Rajiv, I welcome you. And thank you so much, Tanushree. With a lot of knowledge, आज हमारे students बहुत कुछ सीख सकेंगे आपके session से आज. Let's try, I would say. Yes. Thank you so much for joining, everybody. I would say, it's an honor as well. The objective of SAC is to, I'm always inspired by what SAC is doing. उनका जो काम है, जैसे incubators के through वो आप जैसे startups को promote कर रहे हैं. So that is a very good cause, and that's how we have been able to connect because we think similarly. कोशिश यही है कि भी जितना सीखा है आगे बांटे, सबको समझ में आए कि चीजें आगे कैसे बढ़ानी है. और business is one thing I would say जहाँ पे हम सबको बहुत कुछ सीखना चाहिए और सीखने को मिलता भी है, कुछ अपने एक्सपीरियंस से, कुछ दूसरों के एक्सपीरियंस से. तो आप बहुत यंग हो, everybody I believe is in college, or even after college you guys are starting your own business. So that's a very early stage, I would say, to learn new things, and it's important that you have incubators from SAC who actually are helping you guys. So we know that the purpose of this session, it's about value proposition. So let me start the presentation, and after that we can start working on the things. We can have a Q&A session after the presentation is over, and then we can discuss more things in detail as well if required. All right, one second. So सबको presentation दिख रही है, so just write yes in the chat box, please. Rajiv, we are not. Are you sharing some PPT? Yeah, I was just sharing. It says sorry, an error occurred when screen sharing. Okay, let me just try it again. Okay. We are not able to see it. Yeah, 1 second, please. आपको मेरी screen नजर आ रही है अभी? Right. I think now you guys can see it. Yes, Raj. We can see a gift box. Okay. So we are going to talk about value proposition. So what actually is value proposition? And there are certain questions जो हमने इसका ये हमारा agenda है आज का, जिसके ऊपर हम बात करने वाले हैं. What is value proposition? What a value proposition does? Why it is important to have a great value proposition? Value proposition development tips and actionable takeaways. So it's just not about learning. हम takeaways की भी बात करेंगे कि भी इस presentation के बाद अगर आपने कुछ सीखा तो उससे क्या benefit मिलेगा आपको.
So what is value proposition? That is the first question we have. So, this is probably a good definition of value proposition. Describes the benefits customers can expect from your products and services. So, वो आपकी जो वैल्यू प्रोपोजिशन है, चाहे वो आपके प्रोडक्ट्स हैं, सर्विसेज हैं, किस चीज को कैटर करती है, किस चीज के बारे में बात कर रहे हैं, ये वैल्यू प्रोपोजिशन होती है जो आपके बेनिफिट्स हैं, जो कस्टमर को मिलने वाले हैं बाय यूजिंग योर प्रोडक्ट्स और सर्विसेज. वो मॉनेटरी बेनिफिट्स हो सकते हैं, पैसे से रिलेटेड, पीस ऑफ माइंड या हेल्थ से रिलेटेड भी हो सकते हैं, या वर्क लाइफ बैलेंस से रिलेटेड भी हो सकते हैं. सो a value proposition is a definition के हिसाब से चलें तो it describes the benefits customers can expect from your products and services. So this is the definition of value proposition. So let's break it down. So describes the benefit. जो value proposition है वो क्या, उसमें क्या होना चाहिए? सबसे पहले it should describe the benefits, जो पॉजिटिव आउटकम्स हैं इस एंगेजमेंट से, चाहे आपका बिजनेस है उसमें आप प्रोडक्ट्स दे रहे हैं या सर्विसेज दे रहे हैं अपने कस्टमर्स को, उनसे आपके कस्टमर्स को क्या पॉजिटिव आउटकम्स मिलने वाली है. आपकी जो वैल्यू प्रोपोजिशन है इट शुड डिस्क्राइब्स द बेनिफिट्स, व्हाट कस्टमर्स कैन एक्सपेक्ट. अब कस्टमर की लैंग्वेज में आपको बताना आता है, इट्स नॉट इन योर ओन, इट शुड बी इन कस्टमर, कि कस्टमर क्या एक्सपेक्ट कर सकता है आपके प्रोडक्ट से, आपकी सर्विसेज से, एंड योर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज. नाउ दिस इज व्हाट द मेन पॉइंट, कि आप कस्टमर को एक प्रोडक्ट और सर्विस बेचना चाह रहे हैं तो उसमें क्या इंक्लूडेड है, आपका प्रोडक्ट किस चीज के क्या काम कर रहा है, आपकी सर्विस किससे रिलेटेड है. इन सब चीजों को जब हम कंबाइन करते हैं तो दैट इज व्हाट यू गेट, दैट इज व्हेन यू गेट अ वैल्यू प्रोपोजिशन स्टेटमेंट. और एक चीज आपको सबको ये ध्यान रखनी है कि जो आपकी प्रोडक्ट और सर्विसेज की वैल्यू प्रोपोजिशन है इट इज डिफरेंट फ्रॉम योर कंपनी वैल्यू प्रोपोजिशन. मेरी कंपनी की वैल्यू प्रोपोजिशन अलग होगी, मेरे हर एक प्रोडक्ट की, मेरी हर एक सर्विस की वैल्यू प्रोपोजिशन अलग होगी ऑल टुगेदर. Moving on to the second part, what a value proposition does. सबका क्वेश्चन यही होएगा कि भाई चलो हमने वैल्यू प्रोपोजिशन बना ली, बट ये करती क्या है, इसका पर्पस क्या है. So we talk about value propositions benefits. ठीक है, a good value proposition fulfills several key tasks. इसके बहुत सारे काम होते हैं. सबसे पहले तो relevancy. Relevancy का मतलब है कि it explains how your product or service meets customer needs. इसमें आपका जो प्रोडक्ट है या आपकी जो सर्विस है उसको हम डिस्क्राइब करते हैं इन अ वे कि कस्टमर को ये समझ में आए कि आपके प्रोडक्ट और सर्विस को यूज करने से उसको क्या बेनिफिट मिलने वाला है, क्या वो रेलेवेंट है उसके. देन क्वांटिटेटिव बेनिफिट्स, वी टॉक अबाउट उसको क्या क्वांटिफाइड रिजल्ट्स मिलेंगे. अगर वो आज किसी काम को कर रहा है और उस काम को करने में उसको 2 घंटे लग रहे हैं, क्या आपका प्रोडक्ट यूज करने के बाद क्या वो 1 घंटे में कर पाएगा? Measurable, quantifiable value की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे. That is also what is important here. It describes the benefits your customers will receive, which is a quantified value. Then the unique differentiation. So आप अपने जो आपका competition है, जो दूसरे भी, it's not like that you are only selling one product and one who is doing it. Monopoly बहुत कम products में, services में मिलती है. बट एक यूनिक डिफरेंशिएशन क्या है आपकी, या आपकी टीम बहुत अच्छी है जो कस्टमर्स को हर समय सपोर्ट देती है, या आपका प्रोडक्ट बहुत 24/7 उसकी अवेलेबिलिटी है उस प्रोडक्ट से, उस सर्विस से. सो एक यूनिक डिफरेंशिएशन की बात हो रही है यहाँ पे कि पॉजिटिव पोजीशन. तो इन सब चीजों के जो कॉम्बिनेशन, हाउ यू पॉजिटिवली पोजीशन को बोलते हैं, इन सब चीजों को, इन टास्क को आपकी वैल्यू प्रोपोजिशन डिफाइन करती है. सो आप इसको ऐसे भी सोच सकते हैं, दिस इज व्हाट आई ऑलवेज बिलीव इन, कि एक प्रॉमिस है आपका आपके कस्टमर को कि व्हेन यू वर्क विद मी, व्हेन यू यूज माय प्रोडक्ट्स, व्हेन यू यूज माय सर्विसेज, दिस इज व्हाट यू गोना गेट, एंड आई एम गोइंग टू मेक श्योर दैट आई फुलफिल दैट प्रॉमिस. सो दिस इज द काइंड ऑफ प्रॉमिस यू मेक टू योर कस्टमर्स. सो ये सेवरल की टास्क्स हैं जो आपकी वैल्यू प्रोपोजिशन वो करती है. अब हम बात करते हैं कि why it is important to have a great value proposition. तो किसी भी बिजनेस के लिए एक वैल्यू प्रोपोजिशन क्यों जरूरी है, हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे. सो जैसे हम बात करें कि why should you have a great value proposition, इसके बेनिफिट्स क्या हैं. आपको खुद को एक समझ मिलती है, you get a better understanding of your customers and how your solution meets their requirements or their needs.
बेसिकली व्हेन आप अपनी वैल्यू प्रोपोजिशन पे काम करते हैं, यू चेक अबाउट योर कस्टमर्स, जिसके बारे में हम देखेंगे. वी हैव अनदर स्लाइड जहाँ पे हम इसके बारे में बात करेंगे. बट व्हेन वी टॉक अबाउट कस्टमर्स एंड देयर नीड्स, आपको एक अंडरस्टैंडिंग मिलती है कि बेस्ड अपॉन कस्टमर्स नीड्स दिस इज व्हाट आई एम गोइंग टू डिलीवर. और इससे कस्टमर को, क्या मेरे सोल्यूशन से कस्टमर को ये सारे बेनिफिट्स मिलने वाले हैं. इट गिव्स यू क्लैरिटी अबाउट योर ओन प्रोडक्ट्स एंड योर सर्विसेज. It also helps you highlight the key features that differentiate you from your other solutions in the market. So जैसे हमने बात करी कंपटीशन की, तो कंपटीशन मार्केट में हमेशा रहेगा, बट आपकी वैल्यू प्रोपोजिशन जो है, क्या उसके अकॉर्डिंगली आप अपने आप को अपने कंपटीशन से सेपरेट कर पा रहे हो. कैन पीपल सी योर वैल्यू प्रोपोजिशन एंड से कि यस यू गाइज आर डिफरेंट फ्रॉम योर कंपटीशन. और अदर जो बेनिफिट्स हैं इसके कि it also helps your sales and marketing efforts. When your value proposition is clear, your sales department or your marketing department, उनको पता है कि हम क्या बेचने वाले हैं, सामने वाले को क्या benefit मिलने वाले हैं उसके, so they have clarity of these things. So without any doubts, they can go and talk to the customer and say कि सर ये values आपको मिलने वाली हैं हमारे इस product से, हमारे इस service से. अब इसमें जो सेकंड पॉइंट है वो है इंश्योर कंसिस्टेंसी एंड क्लैरिटी ऑफ मैसेजिंग अक्रॉस योर ब्रांड. इसमें क्या रहता है, आपकी वैल्यू प्रोपोजिशन में आपको क्लैरिटी मिलती है कि मुझे किसी भी बंदे को एक क्लियर मैसेज देना है. तो इट्स नॉट लाइक कि सेल्स डिपार्टमेंट एक पिच यूज कर रहा है, मार्केटिंग डिपार्टमेंट कुछ और पिच यूज कर रहा है. इट्स अ कंसिस्टेंट मैसेजिंग अक्रॉस ऑल योर ब्रांड चैनल्स. It helps you attract relevant leads when you know कि भी मेरे प्रोडक्ट की ये खासियत है और मेरे को ये वाले कस्टमर्स चाहिए, तो आप सिर्फ उन्हीं कस्टमर और उसी ऑडियंस के पीछे जाते हो जहाँ पे आपका एक रेलेवेंस और आपकी एक मैच बन रहा है. So it helps you attract relevant leads as well. And of course it improves customer engagement because when customers can see that you have a certain or a qualified value proposition available, वहाँ पे कस्टमर्स आपके साथ बेटर एंगेज हो पाते हैं. बिकॉज जैसे हमने बात करी कि दी वैल्यू प्रोपोजिशन शुड बी इन कस्टमर्स लैंग्वेज, इट शुड नॉट बी इन योर ओन लैंग्वेज. जिस लैंग्वेज में कस्टमर सोच पाता है या समझ पाता है, आपकी वैल्यू प्रोपोजिशन भी उसी लैंग्वेज में होनी चाहिए. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड. सो वी टॉक अबाउट द एग्जांपल्स ऑफ स्मार्ट वैल्यू प्रोपोजिशन. सो वी ऑल नो एप्पल and we all have seen iPhones. Many of us use as well. iPhone 14 is in the market. So what actually is their value proposition? If you can see why there is nothing quite like iPhone. ये Apple बोल रहा है अपने customers को. Every iPhone we have made, and we mean every single one, was built on same belief that a phone should be more than a collection of features. That above all, a phone should be absolutely simple, beautiful and magical to use. अब इस value proposition को जब आप देखेंगे, I have highlighted certain points in yellow. तो इसका एक purpose क्या है उनका customers को ये information देने का? They are telling the customers that we are offering you a very unique experience. आप जब iPhone use कर लेते हैं, we have seen it, many iPhone users would say कि I cannot use Android phone because मैं आईफोन यूज करता हूं तो मुझे उसका जो लुक एंड फील है, उसका जो एस्थेटिक्स है, उसकी जो सिक्योरिटी फीचर्स हैं, वो सब कुछ है, वो मुझे एंड्रॉयड में नहीं मिलते. सो दिस इज अ काइंड ऑफ वैल्यू दैट कस्टमर्स को ऑफर की जा रही है एप्पल के थ्रू यूजिंग द आईफोन मोबाइल फोन्स. सो एक यूनिक एक्सपीरियंस दे रहे हैं. अब वो मैजिकल बोलते हैं इसको. दिस इज समथिंग विच ओनली एप्पल कैन डू, कि एक स्मार्टफोन को मैजिकल बोलना. आप सामने वाले को ये बता रहे हो कि भी एक मैजिक है, व्हेन यू यूज दिस फोन यू विल लव टू हैव दिस मैजिक वर्किंग फॉर यू. और along with this they have very unique features as well. जैसे उसमें एनहांस सिक्योरिटी की बात करते हैं, और लेटली तो इस चीज पे बहुत डिबेट भी चल रहा है कि भी एप्पल इज वेरी स्ट्रिक्ट व्हेन इट कम्स टू सिक्योरिटी, और मल्टीपल जो इन ऐप मोबाइल एप्स में जो एड्स चलती हैं वो भी नहीं चलने देता. वो उसकी बिल्ड क्वालिटी की बात होती है कि हाँ जिस फोन हाथ में पकड़ा हुआ आपको फील होता है कि यार अच्छा स्ट्रॉन्ग फोन है. एंड ईज ऑफ यूज, everybody wants to use a phone which is easy to use. So that is a very good example of smart value proposition. The second example is Slack. I'm sure आप लोगों ने Slack के बारे में सुना होगा. It's a project management system, a very easy to use one, simple one.
उनकी वैल्यू प्रोपोजिशन क्या है? Be more productive at work with less efforts. You know what they're saying is कि आप जब हमारे प्रोडक्ट को यूज करते हो तो it makes your working lives simpler, more pleasant and more productive. इसी very simple words use किए गए हैं, pleasant, simpler और productive, which we can all relate to. हमको पता चलता है कि अच्छा यार इसको मैं यूज करूंगा तो मैं easily काम कर पाऊंगा, मेरी लाइफ सिंपल रहेगी. एंड ऐसा नहीं कि बहुत कम्बरसम है, मैं समझ नहीं पाऊंगा चीजों को. सो आई विल बी हैप्पी व्हेन आई नो मेरा काम हो रहा है, तो इट विल बी प्लीजिंग एक्सपीरियंस फॉर मी. एंड यस आई कैन डू मोर बिकॉज ऑफ द फीचर्स अवेलेबल, तो आई विल बी मोर प्रोडक्टिव. नाउ यू सी द नेक्स्ट पॉइंट, नासा का एग्जांपल दिया हुआ उन्होंने. दे हैव वेरी क्लेवरली implies that if this system is good enough for the large teams of scientists at NASA, then it is good enough for anyone. So नासा की एग्जांपल लेके बता रहे हैं कि अगर हमारे स्लैक सिस्टम को नासा के साइंटिस्ट यूज करके मार्स पे रोबोट्स भेज सकते हैं, सो देन इट इज गुड फॉर एनीबॉडी एल्स एज वेल. और इसको बैक करने के लिए, और दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, वैल्यू प्रोपोजिशन का मतलब ये नहीं कि सामने वाले को सिर्फ आपको अच्छी अच्छी बातें बतानी है. आपके प्रोडक्ट, आपकी सर्विस में वो सारे फीचर्स भी होने चाहिए उस वैल्यू प्रोपोजिशन को बैक करने के लिए. सो स्लैक के पास मेनी यूनिक फीचर्स हैं जिसको वो अपनी वैल्यू प्रोपोजिशन के थ्रू बैक करता है. Moving on to the next point, which is value proposition development tips. हमने बात करी कि वैल्यू प्रोपोजिशन क्या है, इसके बेनिफिट्स क्या हैं, हमने कुछ एक एग्जांपल्स भी देखी, बट उसको डेवलप करने की टिप्स क्या हैं, और ये चीजें जो हैं उसके बारे में बात करते हैं कि we should learn how to develop a value proposition. Now, एक चीज आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड अ कपल ऑफ थिंग्स हियर. इस ब्रांड के बारे में सारे जानते हैं, नाइकी की बात कर रहे हैं. एंड लेट्स, देयर आर 4 पॉइंट्स, 4 डिफरेंट आई वुड से मैसेजेस एक कंपनी की तरफ से आते हैं. फर्स्ट इज वैल्यू प्रोपोजिशन, सेकंड इज मिशन स्टेटमेंट, थर्ड इज अ स्लोगन एंड फोर्थ वन इज अ टैगलाइन. सो वी ऑल नो कि नाइकी की टैगलाइन है जस्ट डू इट. So that's how they actually put all the products. जब आपके सामने आपने एड भी देखी होगी उसकी, उसमें वो एक टिक लगाते हैं, एक चेक बॉक्स, एक चेक लगाते हैं, उसके नीचे लिखते हैं just do it. That's the tagline. What is the slogan? Twice the goods, double the glory. बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा, but this is the slogan of Nike company. अच्छा, अब उनकी मिशन स्टेटमेंट क्या है? What they want to achieve? To bring inspiration and innovation to every athlete in the world. That's their mission statement. This is how we live, this is what we live by. And then the value proposition, customizable performance or lifestyle sneakers with unique colorways and materials. Now this is what this is very important for us to understand कि इन चारों चीजों में अलग-अलग words use किए गए हैं, उनका पर्पस अलग-अलग है. And that is why we need to have a very clarity कि हमारी value proposition, हमारी mission statement, slogan और tagline वो mix up ना हो. So right now we are only talking about value proposition, which is the first point here. Now, before we get into the tips, we should know that what all the factors are there that influence the buying decision of a consumer, which is very important for us to understand, because अगर हमको ये नहीं मालूम कि हमारे कस्टमर्स को क्या इन्फ्लुएंस कर रहा है, हाउ वुड वी सेल इट टू देम, हम अपने प्रोडक्ट्स कैसे बनाएंगे, हमारी सर्विसेज कैसे बनाएंगे. सो इन 7 फैक्टर्स के बारे में अभी डिस्कशन करेंगे. द वेरी फर्स्ट फैक्टर इज इकोनॉमिक फैक्टर. इट्स वेरी सिंपल, राइट? अगर आपने एक प्रोडक्ट बनाया, हम एप्पल आईफोन की बात कर रहे हैं, 1.5 लाख रुपए का फोन है, नॉट एवरीबडी कैन बाय इट, चाहे वो जितना भी अच्छा हो. ठीक है, that's why Android phones are still working and they are doing very good in the market as well, because not everybody can afford Apple iPhone. तो economic factor जो है वो सबसे important आता है. That's why it's at number 1. Because मेरे पास अगर पैसे नहीं है किसी चीज को खरीदने के लिए, yes मुझे Mercedes बहुत पसंद है, मुझे Jaguar बहुत पसंद है, but if I do not have the money, what will I do? तो वो जो कस्टमर्स के हैं, वो जो कंपनीज हैं, वो मेरे को टारगेट करके ये प्रोडक्ट नहीं बना रही हैं. They have a different audience altogether. So economic factor is the most important factor here. The second part is functional factor. It's about the need. ठीक है, मुझे मेरे घर से ऑफिस जाना है, I need a car. Okay? तो उस कार के लिए मुझे ये देखना है कि अच्छा यार मुझे कौन सी कार चाहिए.
ठीक है, मेरा ऑफिस मेरे घर से 25 किलोमीटर दूर है, तो क्या मैं रोज ऐसी गाड़ी लेके जा सकता हूँ जो 10 की माइलेज देती है या 10 किलोमीटर पर लीटर की माइलेज देती है? डजंट मेक एनी सेंस व्हेन आई नो कि मेरी पॉकेट में पैसे कम है. सो आई वुड रादर गो फॉर ऑल्टो. ठीक है यार, मुझे अच्छा लगता है कि हाँ छोटी कार है, मैन्यूवर करना आसान है, वहां पहुंचने में मुझे टाइम नहीं लगता है, and it gives me a good mileage of 20 kilometers per liter as well, 25 kilometers per liter as well. तो ये लॉजिक के बेसिस पे, फंक्शनल फैक्टर्स के बेसिस पे एक और डिसीजन जो है वो कंज्यूमर का वो अफेक्ट करता है, which is फंक्शनल फैक्टर. इट इज बैक्ड बाय लॉजिक कि मुझे ये चीज चाहिए कि नहीं चाहिए. अगर मेरे पास एंड्रॉइड फोन है एंड इट इज वर्किंग फॉर मी, इट्स लॉजिकल दैट आई डू नॉट स्पेंड 1.5 लाख रुपीस ऑन आईफोन. अगर मैं खर्च सकता हूँ, yes, it's a luxury for me, I can do that. But if I cannot, then I should be more logical about my requirements. मेरी रिक्वायरमेंट है मेरा व्हाट्सएप चले, मेरे बिजनेस के मैसेजेस मेरे पास आए, मैं लोगों से बात कर सकूं. I can do it with an Android phone as well, which is $10,000. तो एक need based on the logic is also very important. The next point is marketing mix factors. ये ना 4 पॉइंट्स हैं which everybody should learn about. ठीक है, इसमें है प्रोडक्ट, प्राइसिंग, प्रमोशन एंड प्लेस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन. आप देखोगे कोई भी प्रोडक्ट जो है, अगर वो अच्छा प्रोडक्ट है तो इट ऑल दीज 4 फैक्टर्स उसमें आते हैं. एक प्रोडक्ट, मेरे पास एक प्रोडक्ट है, आई हैव अ वेरी गुड प्रोडक्ट, बट उसकी प्राइसिंग इतनी ज्यादा है, जस्ट लेट्स से आईफोन की बात करते हैं 1.5 लाख, तो इट्स नॉट फॉर एवरीबॉडी. ठीक है, तो मैं प्रमोट कैसे करूंगा उस प्रोडक्ट को? I will promote it in a way कि भी सामने वाले को, जिसके पास पैसे हैं, they should understand कि अच्छा मुझे ये चीज खरीदनी है because it's a status symbol for me, it's a luxury item for me. तो वहां पे हमारी प्रमोशन अलग हो जाएगी. And place of distribution, अगर मैं आईफोन का एक एप्पल स्टोर खोल दूं किसी गांव में, कितने ही लोग उसको खरीदेंगे उस प्रोडक्ट को जाके वहां पे? Very few, I would say. तो प्लेस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन जो है, that is also very important. तो अगर हम कार्ड्स की बात करें, फोन्स की बात करें, हमारी सर्विसेज की बात करें, कोई भी चीज जो है वो इन 4 फैक्टर्स के ऊपर वेरी वेरी प्रिडोमिनेंटली डिपेंड करती है. प्रोडक्ट, प्राइसिंग, प्रमोशन एंड प्लेस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन. जहां पे ये चीजें आपको ऑडियंस मिलेगी जो इन चीजों को, इन फैक्टर्स को मैच कर रही है, दैट इज गोइंग टू बी योर लोकेशन फॉर द बिजनेस ऑल्सो. द नेक्स्ट पॉइंट इज पर्सनल फैक्टर्स. That includes your age, occupation, lifestyle, social and economic status, and the gender of the consumer as well. So we know, अभी हमने बात करी, I know कि there is a startup in Panchkula incubator, and the girl who works there, she makes clay pots. ठीक है, तो clay pots, अगर मैं किसी आदमी को बोलूँ यार तेरे को क्ले पॉट चाहिए, फॉर अ ब्रीफ मोमेंट ही वुड से मुझे क्यों चाहिए, मैंने खाना थोड़ा बनाना है. ठीक है, सो वहां पे एक ऑडियंस का फर्क क्या आ गया. ऑडियंस कुड बी द लेडीज ऑफ द हाउस हु एक्चुअली आर कुकिंग द फूड, जो घर पे खाना बनाती हैं. वो मेरी एक ऑडियंस होगी. मैं लेडीज को ये बताऊं कि व्हाट आर द बेनिफिट्स, जब आप क्ले पॉट में खाना बनाते हो तो उसके बेनिफिट्स क्या है. और नॉट एवरीबडी वुड से कि अच्छा यार मुझे, अब क्ले का बर्तन है तो टूट भी सकता है, तो इट्स नॉट लाइक कि भी उसकी जो शेल्फ लाइफ है बहुत ज्यादा होगी एज कम्पेयर टू स्टील और जो हमारे हंडोलियम के जो बर्तन होते हैं उसके कंपैरेटिवली कम होएगी. तो वी नो कि अच्छा इस चीज को इनको बार बार खरीदना भी पड़ सकता है. और एज, ऑफ कोर्स जो यंग लोग हैं दे मे नॉट बी वेरी हैप्पी टू कुक एट होम, बट जो हमारे मदर्स हैं दे स्टिल आर वेरी हैप्पी टू कुक फूड एट होम. तो एक एज भी वहां पे आ गया. ऑक्यूपेशन अगेन, क्योंकि अगर मैं वर्किंग क्लास हूं तो आई डू नॉट हैव टाइम टू कुक, सो हो सकता है कि क्ले पॉट मेरे लिए इतना मैटर ना करे. बट इफ समबडी इज एट होम एंड ही इज लाइक लेट्स से आवर मदर्स, तो अगर वो घर पे बैठ के अपने प्यार से हमारे लिए खाना बनाते हैं उस क्ले पॉट में, दे नो कि मैं क्या बेनिफिट दे रही हूँ अपनी फैमिली को बाय यूजिंग दिस क्ले पॉट. सो दैट इज माय ऑडियंस देयर. सो ये जो पर्सनल फैक्टर्स हैं, age, occupation, lifestyle, social and economic status, these are very important factors that actually influence the buying decision of a consumer. तो इन चीजों को भी आपको when you are actually creating a product or a service, इन चीजों को आपको ध्यान में रखना है कि भी कौन सी ऑडियंस है मेरे लिए. अब मैं
मैं लेडीज गारमेंट बनाता हूँ, तो I cannot sell it to gents until unless कि they are giving it as a gift to their wives or the girlfriends. So that is a different domain altogether. But मेरा जो main target audience रहेगा वो रहेगा जो उस particular product को direct buyer जो है उसको consider करते हुए. तो you know कि Zara बहुत अच्छा कर रहा है these days. क्यों? क्योंकि Zara ने जो इन चीजों को कंसिडर किया कि लोगों को क्या चाहिए, उनको फैशनेबल क्लोथ्स चाहिए, बहुत लंबे ना भी चले, इट्स ओके. सो यू विल सी कि उनके जो कपड़े भी होते हैं कि ऐसा नहीं कि वो 5-6 साल चलते हैं, 2 साल चलेंगे, 3 साल चलेंगे, देन दे विल बी गॉन. तो उन्होंने ये नहीं देखा कि भी इसकी ड्यूरेबिलिटी की बात नहीं हो रही. लोगों को आजकल फैशन में क्या चीज इन है वो चाहिए, प्लस वो जो फैशन है वो रिपीट होता रहता है, सॉरी बदलता रहता है. तो वो नए आइटम्स, नए स्टाइल्स लेके आते हैं अपने क्लोथ्स में. तो दे ऑलरेडी नो कि मेरी ऑडियंस क्या है. एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरी बिजनेस टू अंडरस्टैंड कि हमारी ऑडियंस क्या है, वो किस एज के हैं, उनका लाइफस्टाइल कैसा है, वो किस तरीके के एनवायरनमेंट में रहते हैं. सो पर्सनल फैक्टर्स आर अगेन वेरी इंपॉर्टेंट दैट इन्फ्लुएंस द बाइंग डिसीजन. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट, द साइकोलॉजिकल फैक्टर. अगेन मैं बात करूंगा यहाँ पे 4 important points की: perception, motivation, learning, beliefs and attitude. तो perception किसी भी चीज को अगर बनाई जाए किसी को लेके, if I know, मैं पर्सनली बात करूं तो हम बोलते हैं कि यार एंड्रॉयड फोन आर वेरी गुड, ठीक है, ये मेरी परसेप्शन है. पर until unless I use an iPhone, वो मेरी परसेप्शन तब तक बनी रहेगी, ठीक है. तो इसको इसी तरीके से एक एग्जांपल लेके बात करते हैं कि somebody is into a job and he is using an Android phone. तो अब उसको लगता है यार मुझे आईफोन लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए. बट वो जब अपने फ्रेंड से बात करता है एंड फ्रेंड्स उसको बताते हैं कि यार ऐसा नहीं है कि भी एंड्रॉयड फोन हमेशा अच्छे हैं, आईफोन्स आर बेटर एज वेल. उनका जो लुक एंड फील है, बिल्ड क्वालिटी है, प्राइवेसी है एंड अदर थिंग्स, दे आर वेरी गुड. तो आपकी परसेप्शन जो है वो चेंज होने लगती है टूवर्ड्स दैट फोन. फिर आपको मोटिवेशन कैसे मिलेगी? मेरे फ्रेंड्स ने बोला कि यार ये फोन तेरे को लेके ट्राई करना चाहिए. आई बेट कि अगर तू एक बार आईफोन यूज करेगा तो दोबारा एंड्रॉयड फोन नहीं यूज करेगा. सो काइंड ऑफ मोटिवेशन, हु इज गिविंग योर मोटिवेशन. देन द लर्निंग पार्ट इज देयर. ठीक है, मुझे लगा कि अच्छा आई शुड रीड अबाउट इट एज वेल. तो मैं ऑनलाइन जाता हूँ, जाके उसके बारे में पढ़ता हूँ कि अच्छा लोगों की एक्सपीरियंसेस क्या है, लोग क्या बोलते हैं इसके बारे में, व्हाट पीपल आर टॉकिंग अबाउट, उनके खुद के परसेप्शंस क्या हैं, क्या उनको मोटिवेट किया किसी चीज को खरीदने के लिए. तो वहां से मैं अपनी लर्निंग्स लेता हूँ. एंड देन मेरे बिलीव्स और एटीट्यूड्स के ऊपर बात आती है कि क्या मैं इस चीज को कैरी कर सकता हूँ. डू आई वांट टू कीप दिस फोन विद मी फॉर अ लॉन्गर पीरियड, कि मैं 1.5 लाख का फोन खरीदूंगा तो मैं 4 साल चलाऊंगा. तो ये मेरा जो बाइंग एटीट्यूड है उन चीजों को सबको इन्फ्लुएंस करता है. ये सारे साइकोलॉजिकल फैक्टर्स, बिकॉज दीज ऑल थिंग्स आर इन माय ब्रेन. इट्स नॉट मनी, इट्स नॉट नीड. ये प्रमोशन की बात नहीं हो रही है, पर्सनल फैक्टर्स की बात नहीं हो रही है, साइकोलॉजिकल फैक्टर्स की बात हो रही है. बिकॉज दीज ऑल थिंग्स, व्हेन यू कंटेम्पलेट ऑल दीज थिंग्स, अपने दिमाग में सोचते हो, तो ये सारे साइकोलॉजिकल फैक्टर्स बन जाते हैं. द नेक्स्ट पॉइंट इज सोशल फैक्टर. वेरी इंपॉर्टेंट हियर. अगर आपको लगा हो कि किसी ने कोई बाइक ली है, ठीक है, तो लेट्स से मेरे पास पल्सर थी किसी टाइम पे, तो मैंने एक पल्सर ली. तो मेरे फ्रेंड ने बोला यार तूने पल्सर क्यों ली? मुझे लगा यार मुझे अच्छी लगी, मैंने चला के देखी, सो मैंने इसको खरीदा. एंड देन इन दैट ग्रुप व्हाट आई स्टार्टेड डूइंग इज, जो मेरे फ्रेंड्स थे या मेरे जो फैमिली मेंबर्स थे, मैंने उनसे जब भी बात करी, दे आस्क्ड मी कि भी अच्छा कैसा है तुम्हारा एक्सपीरियंसेस के साथ. सो आई स्टार्टेड गिविंग देम गुड फीडबैक कि अच्छा है, माइलेज अच्छा है, पिकअप अच्छा है. उन सब फैक्टर्स की बात करते करते मैंने उन पूरे ग्रुप्स के साथ हमारी बात होनी शुरू हुई. देन आई फेल्ट कि भी हमारी उस डिस्कशंस के बाद काफी सारे लोगों ने, मेरी फैमिली में, मेरे फ्रेंड्स में, लोगों ने पल्सर खरीदा. क्यों? बिकॉज नाउ दे डू नॉट वांट टू बी लेट डाउन कि अच्छा यार मैं पल्सर भी नहीं खरीद सकता, या लोग मेरे को इसको स्टेटस सिंबल की तरह डील करने लगे कि अच्छा पल्सर इज अ गुड बाइक, तो मुझे एक पल्सर बाइक खरीदनी चाहिए. फैमिली वाले भी बोलते हैं यार यू शुड बाय पल्सर बिकॉज शर्मा जी के बेटे के पास भी पल्सर है. तो ये सारे फैक्टर्स है ना, सोशल फैक्टर्स, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट टू. आपको वो भी कंसिडर करने पड़ेंगे व्हेन यू आर डेवलपिंग योर प्रोडक्ट्स एंड योर सर्विसेज. The seventh and the last point is cultural factors.
अब हम ना अलग अलग कल्चर्स में रह रहे हैं, अलग अलग रिलीजन्स में रहते हैं, अलग अलग सोसाइटीज में रहते हैं, तो ये सारे जो है ना, इट्स अ वेरी कॉम्प्लेक्स सिस्टम आई वुड से। जो सोशल और कल्चरल एनवायरनमेंट होता है, इट्स वेरी कॉम्प्लेक्स। अब मैं एग्जांपल दूं अब ROC, रिपब्लिक ऑफ चिकन की। तो रिपब्लिक ऑफ चिकन, दे सेल चिकन एंड मीट आइटम्स। तो अगर क्या उस ऐसी कम्युनिटी को, वो जैन कम्युनिटी को अगर टारगेट करने की सोचेंगे, तो इट्स वेरी हार्ड फॉर देम टू सेल देयर, बिकॉज yes, there may be a couple of people who would be eating meat, जो मीट या चिकन खा सकते हैं, बट अदरवाइज जो जैनी लोग हैं, they are all vegetarians। तो वहाँ पे आपका एक टोटल मिसमैच है एक कल्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से, कि आपने कल्चरल फैक्टर को सोचा ही नहीं कि भी मैं अपने जो मीट प्रोडक्ट्स हैं वो एक ऐसी कम्युनिटी को बेचने की सोच रहा हूँ, पीपल हु आर वीगन और वेजिटेरियंस। तो यहाँ पे कंप्लीट आपका मिसमैच बना आपका प्रोडक्ट और सर्विस का। तो वहां पे उस ऑडियंस में आप अपने प्रोडक्ट्स को सेल नहीं कर पाएंगे। दिस इज जस्ट वन एग्जांपल, यू नीड टू कंसिडर इट फॉर योर ऑडियंस एज वेल, कि क्या वहां पे कुछ ऐसे कल्चरल फैक्टर्स तो नहीं है, अगर हैं तो उन चीजों को भी कंसिडर करके ही आपको आगे चलना पड़ेगा। सो दीज आर द 7 इंपॉर्टेंट फैक्टर्स जो इन्फ्लुएंस करते हैं किसी भी बाइंग डिसीजन को ऑफ अ कंज्यूमर। Moving on to the next point, and this is a value proposition canvas, because अभी हम बात कर रहे हैं कि value proposition development tips की। तो ये canvas रहता है, I would be happy to share this canvas with all of you guys. This is what companies use to develop their value proposition. आप देखेंगे on the right hand side, it's customer jobs, pains, gains, and on the left hand side is companies, products and services, gains and pain relievers, gain creators and pain relievers। तो पहले राइट हैंड साइड की बात कर लेते हैं, कस्टमर्स की। तो कस्टमर का जॉब क्या है? आपको जब भी अपनी वैल्यू प्रोपोजिशन आपने बनानी है, यू नीड टू राइट डाउन द स्पेसिफिक जॉब्स ऑफ अ कस्टमर, कि वो क्या कर रहा है या क्या करना चाह रहा है, चाहे वो मेजर है चाहे माइनर है, कुछ भी जो आपको लगता है कि आपका जो कस्टमर है, दिस इज व्हाट देयर जॉब्स आर एंड दिस इज व्हाट दे वांट टू अचीव। ये एक लिस्ट बनाओ अपने कस्टमर की, जो डेली एक्टिविटीज हैं, जो भी वर्किंग एक्टिविटीज हैं उसकी, कि ये मेरे कस्टमर्स की जॉब्स हैं। देन वी टॉक अबाउट कि कस्टमर्स क्या एक्सपेक्ट करता है गेन्स को लेके, कि अगर कस्टमर को लगता है कि यार ये चीज मैं अगर मेरे पास हो तो मेरा काम बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको एग्जांपल दो यहाँ पे, तो हमारे पास पहले अकाउंट्स जो था सारा बुक्स में मेंटेन होता था। तो एवरीबडी जो अकाउंटेंट्स थे, इट वाज अ वेरी टीडियस टास्क फॉर देम, कि भी आपको हर एक अकाउंट बुक को मेंटेन करना है। एंट्रीज गलत भी होती थी, आपको ठीक भी करनी पड़ती थी, या कई बार आप मिस भी कर जाते थे। तो अगर उनके पास एक सॉफ्टवेयर आया, टैली, TALLY, जो कस्टमर्स, जो अकाउंटेंट्स के लिए आई वुड से वाज अ बून। तो टैली ने बहुत जल्दी मार्केट पिकअप किया, बिकॉज अकाउंटेंट्स जो थे, दे वर इजीली एबल टू मेंटेन द अकाउंट्स ऑफ बिग फर्म्स एज वेल। तो उन्होंने अकाउंटेंट्स का काम बहुत आसान कर दिया। तो यहाँ पे हम बात करते हैं गेन्स की, कि उनको क्या गेन्स मिलेंगे आपके प्रोडक्ट्स को, या जो कस्टमर जो है क्या एक्सपेक्ट कर रहा है कि उसको क्या गेन्स मिलने चाहिए when he or she is doing his or her job. Then the pain points क्या है? Create a list of every pain customer experiences or could experience during or after getting the job done. तो जरूरी नहीं कि भी जॉब करने के दौरान उसको कुछ प्रॉब्लम्स हो, जॉब करने के बाद भी उसको प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। कि लेट्स से मैंने एक एक्सेल फाइल बनाई, अब एक्सेल फाइल बना तो ली, उसमें 10,000 एंट्रीज हैं, पर मैं जब उसको एक्सपोर्ट करने की या कहीं पे अपलोड करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो कनेक्शन टाइम आउट हुए जा रहा है। तो द वायरलेस सिग्नल विच आई हैव इज नॉट गुड। तो एक तो उसकी जॉब पहले ही बहुत टीडियस थी, 10,000 रिकॉर्ड उसको डाले थे, बट नाउ उसको अपलोड करने में भी चैलेंज आ रहा है। इट्स अनदर पेन पॉइंट फॉर द कस्टमर। सो यू हैव टू कंसिडर योर प्रोडक्ट, और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग आपको ये देखना है, पहले तो कस्टमर को समझो, कस्टमर की जॉब्स क्या हैं, वो क्या बेनिफिट्स एक्सपेक्ट कर रहा है, उसको क्या पेन पॉइंट्स हैं, कि क्या आप उन पेन पॉइंट्स को सोच पा रहे हो, समझ पा रहे हो, एंड देन यू वर्क ऑन योर प्रोडक्ट। सी अब हम मूव करते हैं लेफ्ट हैंड साइड पे, लिस्ट ऑल योर प्रोडक्ट्स और सर्विसेज अराउंड व्हिच a value proposition is to be built।
तो हमारे पास, मेरी कंपनी है उसमें मेरे पास 5 प्रोडक्ट्स हैं। अब मैंने जब वैल्यू प्रोपोजिशन बनाई, हर एक प्रोडक्ट की अलग अलग वैल्यू प्रोपोजिशन बनेगी। तो मैंने कस्टमर को समझा कि ये मेरी ऑडियंस है। अब मैंने अपने प्रोडक्ट को समझा कि क्या इस प्रोडक्ट को, अगर मैं समझूं कि इस प्रोडक्ट से मैं कस्टमर को क्या बेनिफिट दे सकता हूँ, मैंने वो प्रोडक्ट उठाया एंड देन मैंने सोचा कि क्या गेन क्या क्रिएट कर रहा हूँ मैं इस कस्टमर के लिए। So describe all the gains customers is going to make from your product and services. तो जो उनको expected था कि यार ये मुझे मिलना चाहिए, क्या आपका प्रोडक्ट और सर्विस वो दे पा रहा है? That is going to be your gain creators through your product and services. Then the pain relievers की बात करते हैं कि क्या जो उसके पेन पॉइंट्स थे आपके प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, क्या उन पेन पॉइंट्स को रिलीव कर पा रहे हैं? This is very important for us to understand कि जो कस्टमर के पेन पॉइंट्स हैं उनके कॉरेस्पॉन्डिंग हमारे पास पेन रिलीवर्स हैं, और जो कस्टमर को गेन एक्सपेक्टेड है उसके कॉरेस्पॉन्डिंग क्या हमारे पास गेन क्रिएट करने वाले पॉइंट्स हैं हमारे प्रोडक्ट्स और सर्विसेज में। Based upon that, you will write down इनको बेसिकली हम क्या करते हैं जब भी इस चीज को बनाते हैं, अपने स्टिकी नोट्स देखे होंगे, तो हम एक सेक्शन में कस्टमर जॉब्स लिख के उस पे स्टिकी नोट्स बना के उसके ऊपर हम डालते रहते हैं कि ये कस्टमर की जॉब्स हैं। यूजिंग दोज स्टिकी नोट्स और पीस ऑफ पेपर यू राइट डाउन एवरीथिंग। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू अंडरस्टैंड कि वैल्यू प्रोपोजिशन तब तक नहीं लिखी जा सकती जब तक आप अपने कस्टमर्स को, उनकी जॉब्स को, उनके पेन पॉइंट्स को और उनके एक्सपेक्टेड गेन्स को नहीं जानते हो। एंड कॉरेस्पॉन्डिंगली आपका प्रोडक्ट, आपकी सर्विसेज क्या उन पेन पॉइंट्स को रिलीव कर पा रहा है, क्या उन गेन्स को प्रोवाइड कर पा रहा है। जब तक आप इन चीजों को राइट डाउन नहीं करोगे, टिल दैट टाइम यू कैन नॉट कम अप विद अ वेरी ऑप्टिमल वैल्यू प्रोपोजिशन। So this is the canvas which we should be using to create our value proposition. Moving to the next slide, these are the top tips. जब भी हम किसी वैल्यू प्रोपोजिशन की बात करते हैं तो these are the certain tips which we should be looking at. A very good value proposition बनाने के लिए ये tips हैं हमारे पास। It's not just about clarity. Value propositions must also be compelling. तो इसका पर्पस क्या है? हम ये बता रहे हैं कि ये नहीं कि हमने एक लाइन में लिखा हो कि मेरा प्रोडक्ट जो है वो आपका ये वाला पॉइंट ठीक करता है या ये वाला पेन ठीक करता है। आप उसको कंपेलिंग बनाओ। अगर आप मेरा ये प्रोडक्ट यूज करते हैं तो आपका ये जो पेन है ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा, आपको ये पॉइंट, ये जो प्रॉब्लम है दोबारा नहीं होगी, प्लस इसके साथ में और बेनिफिट्स भी आपको मिलेंगे। सो एक कंपेलिंग स्टेटमेंट बहुत जरूरी है। वैल्यू प्रोपोजिशंस मस्ट बी कंपेलिंग। कस्टमर को उसको अपील आनी चाहिए कि हाँ यार, दिस इज समथिंग व्हिच आई शुड बी यूजिंग। द सेकंड पॉइंट इज इट शुडंट बी फंक्शनल डिस्क्रिप्शन। अगर मैं बात करूं कि मेरे फोन में स्नैपड्रैगन या क्वालकॉम प्रोसेसर है तो लोगों को समझ भी नहीं आएगा कि अच्छा इसका पर्पस क्या है, उससे क्या होता है। अगर मैं बोलूँ कि यार अगर ये वाला आपके मोबाइल फोन में अगर ये प्रोसेसर है तो आपका जो फोन है इट विल बी 5 times फास्टर या 10 times फास्टर हो जाएगा आपका फोन। तो व्हाट आई वुड से कि अच्छा यार ये फंक्शनल डिस्क्रिप्शन की बात नहीं हो रही, आई कैन इमोशनली कनेक्ट विद इट कि जो काम मेरा पहले 5 घंटे में हो रहा था अब वो 2 घंटे में हो सकता है या 1 घंटे में हो सकता है। आई कैन इजीली कनेक्ट विद इट। अगेन थर्ड पॉइंट इज कस्टमर सेंटर्ड लैंग्वेज की बात कर रहे हैं हम कि जो कस्टमर की लैंग्वेज है उसमें उसको समझ आए। बेनिफिट्स हो चाहे पेन पॉइंट्स हो जिनको हम क्योर करने की बात कर रहे हैं, इट शुड बी इन द कस्टमर्स लैंग्वेज। अगेन टेकिंग द सेम एग्जांपल कि अगर मैं प्रोसेसर को बोलूं कि क्वालकॉम प्रोसेसर है इसमें, तो मैं शायद नहीं समझ पाऊंगा, बट मैं उसको बोलूं कि इट्स अ वेरी हाई स्पीड प्रोसेसर जो हमने इस पे यूज किया है, तो हाई स्पीड हर बंदा समझ पाता है कि अच्छा यार हाई स्पीड की बात हो रही है तो प्रोसेसर मस्ट बी वेरी फास्ट। Then the fourth point must be in this tip is you need to be able to explain it to a friend. Very simple. कोई वैल्यू प्रोपोजिशन अगर आप बनाते हो, आप उस पर काम करते हो, तो आपने जब उस वैल्यू प्रोपोजिशन को बना लिया ना, अपने फ्रेंड से बात करो, उसको बोलो कि यार ये मेरा प्रोडक्ट है, दिस इज व्हाट माय वैल्यू प्रोपोजिशन इज। क्या आप अपने फ्रेंड को समझा पा रहे हो? पहली बात। क्या वो समझ पा रहा है जो आप बताना चाह रहे हो? दूसरी बात, अगर ये दोनों बातें आपकी मैच कर रही हैं या सही बैठ रही हैं, दैट इज अ गुड वैल्यू प्रोपोजिशन। सो हमने कोई डिफिकल्ट लैंग्वेज नहीं यूज करी, हमने वेरी कंपेलिंग अपील यूज करी अपनी लैंग्वेज में, और आई शुड बी एबल टू एक्सप्लेन इट टू माय फ्रेंड इन सिंपल टर्म्स एंड दे शुड बी एबल टू अंडरस्टैंड इट। दैट इज द, आई वुड से, द बेंचमार्क यू शुड सेट अप फॉर योर वैल्यू प्रोपोजिशन। आपके दोस्त को आपने बताया, उसको समझ में आया,
दैट इज अ गुड थिंग. इट डजंट मीन कि वो एक आप खुद एक टेक्निकल बंदे हो, सामने वाला भी टेक्निकल बंदा है, आपने अपनी लैंग्वेज टेक्निकल लैंग्वेज में उसको समझाया, उसको समझ आ गया, एंड यू कैन से अच्छा हाँ यार ठीक है, इसको तो समझ आ रहा है. तो दिस शुड बी अ डाइवर्स ग्रुप. आपके जो फ्रेंड्स जो आपकी इंडस्ट्री से बिलोंग नहीं करते हैं, दिस डिस्कशन शुड बी विद देम ओनली. Needs to be jargon free. I would say आपको technical jargons इसमें नहीं डालने हैं. I will not say कि भी PHP version 7.8 और MySQL version 8.10. I will just simply use, इसमें programming language use की गई है, इसमें एक database use किया गया है to store the data. तो jargon free होनी चाहिए आपकी value proposition. It should be in a tone of voice your customer feel comfortable with. Again, इस बात के ऊपर हम बहुत एम्फेसाइज कर रहे हैं कि आपके जो कस्टमर्स हैं उनकी टोन में बात होनी चाहिए. यहाँ पे हर कस्टमर की टोन अलग है, हर ऑडियंस की टोन अलग है. जस्ट गिव यू एन एग्जांपल, एक सिक्योरिटी गार्ड है, अगर मैं पुलिस की बात करता हूँ, अगर पुलिस का कोई बंदा है, अगर वो उसकी लैंग्वेज अलग होएगी बिकॉज ही इज गोना डील विद डिफरेंट काइंड ऑफ पीपल. उसके पास चोर भी आएंगे, उसके पास डिकैट्स भी आएंगे, उसके बाद नारकोटिक्स के बंदे भी आएंगे. हर एक बंदा इज गोइंग टू बी इन अ डिफरेंट जॉनर, आई वुड से डिफरेंट काइंड ऑफ पर्सन यू विल बी मीटिंग. तो वहां पे उसकी लैंग्वेज और एक बैंक मैनेजर की लैंग्वेज जो है उसमें फर्क होएगा. तो जो चीजें आपने जो पुलिस वाले के साथ डिस्कस करनी है और जो चीजें आपने बैंक मैनेजर के साथ डिस्कस करनी है उसमें बहुत फर्क रहेगा. तो लैंग्वेज उनकी उसके कॉरेस्पॉन्डिंग आपको चेंज करनी पड़ेगी. Last tip here is implicit in the value proposition should be your product and service differentiation. अब इसमें जो बहुत जरूरी चीज ये भी है कि आप ये जरूर लिखो वैल्यू प्रोपोजिशन में कि मेरा प्रोडक्ट या मेरी सर्विस दूसरों से अलग कैसे है. Until unless you differentiate yourself from other products or your other Sir, एक one question. सर आप Q&A रहेगा लास्ट में सर, इफ यू कैन प्लीज वेट फॉर सम टाइम. ओके सर, ओके. या सो यहाँ पे वैल्यू प्रोपोजिशन में बात कर रहे थे हम प्रोडक्ट एंड सर्विस डिफरेंशिएशन की. आप अपने प्रोडक्ट को अपने कंपटीशन से अलग कैसे बता पा रहे हो, वो दैट शुड आल्सो बी पार्ट ऑफ योर वैल्यू प्रोपोजिशन. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट. सो जैसे हमने बात करी कि वी विल बी टॉकिंग अबाउट द एक्शनेबल टेकअवेज एज वेल. तो ये हमने अभी तक बात करी कि वैल्यू प्रोपोजिशन क्या होती है, हाउ यू शुड डू दिस. हमने एग्जांपल्स भी देखी, हमने टिप्स भी देखी, हमने वैल्यू प्रोपोजिशन कैनवस भी देखा. बट एक्शनेबल टेकअवेज क्या हैं जब आप यहाँ से वापस जाएं इस प्रेजेंटेशन के बाद, तो व्हाट यू शुड बी थिंकिंग अबाउट. क्योंकि आपको वैल्यू प्रोपोजिशन बनाने से पहले अपने प्रोडक्ट्स, अपनी सर्विसेज सबके बारे में सोचना पड़ेगा. तो पहला पॉइंट क्या है, बी एम्पैथेटिक एंड क्यूरियस अबाउट योर कस्टमर्स. So when you are empathetic, you actually put yourself in your customer's shoes. आप अपने customers के shoes में खुद को रख के ये चीज feel करते हो कि इसके pain कहाँ पे है, इसको कहाँ problem क्या हो रही है, and based upon that जैसे ये questions लिखे हमने, what are they wanting to achieve, what do they care about, what are their main challenges, what risks do they fear, how do they measure success and failure, what would make their lives or work easier. So these are certain questions, a set of questions you should be asking yourself कि जब मैं प्रोडक्ट या सर्विस बनाने वाला हूँ तो क्या इन क्वेश्चंस के आंसर्स मुझे मिल रहे हैं, और should I speak to somebody and get these answers. तो very important here कि आप अपने कस्टमर्स के बारे में सोचो, उनकी रिक्वायरमेंट के बारे में आप क्यूरियस हो, उनको समझने की कोशिश कर रहे हो. The second point is prioritize and focus. आपको ये चीज सोचनी पड़ेगी कि आपका जो कंपटीशन है उसको मैंने आउट परफॉर्म एटलीस्ट इन वन एरिया करना है. ठीक है, तो चाहे वो प्रोडक्टिविटी है, आपका प्रोडक्ट यूज करने से जो आपके कंपटीशन है और जो आपके कंपेटिटर्स हैं उसके मुकाबले आपका प्रोडक्ट यूज करने पे इतनी प्रोडक्टिविटी बढ़ रही है, दैट इज पॉइंट 1. और प्राइस फैक्टर कि भी मेरा प्राइस जो है मेरे कंपेटिटर से इतने x कम है, so that is a benefit which I'm offering. How you are different from your competition, that is one thing you should need to write down as well. Focus on your strengths and points of differences. Again, very important point कि आपकी खुद की strengths क्या हैं. मेरे प्रोडक्ट की ये स्ट्रेंथ है कि भी मैं अच्छा काम कर पा रहा हूँ, मेरे प्रोडक्ट की स्पीड फास्ट है, मेरे कस्टमर जो हैं उसको जल्दी अपना काम निपटा पा रहे हैं. मेरी स्ट्रेंथ्स क्या हैं
और मैं अलग कैसे हूँ दूसरों से, इन चीजों पे आपको फोकस जरूर रखना है, बिकॉज दैट इज अगेन गोइंग टू गिव यू वेरी गुड इनसाइट्स। फोर्थ पॉइंट, इस चीज को मैं कितना बोलूं, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू अंडरस्टैंड कि यूज लैंग्वेज दैट रेजोनेट्स। आप टेक्निकल लैंग्वेज कम यूज कीजिए, या कस्टमर सेंट्रिक लैंग्वेज यूज कीजिए, और उनके पर्सपेक्टिव से सोचिए कि वो क्या चीज समझ पाएंगे, क्या चीज नहीं समझ पाएंगे। तो उन चीजों को कीप इट सिंपल एंड स्ट्रेट जब बोला जाता है, तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू अंडरस्टैंड कि हम कस्टमर की लैंग्वेज की बात कर रहे हैं, वहां पे हम इसको जितना सिंपल रखेंगे उतना अच्छा रहेगा। एंड कीप आइटरेटिंग, ऐसा नहीं कि आज मैंने वैल्यू प्रोपोजिशन बना ली तो देन आई एम नॉट गोना रिविजिट इट आफ्टर फॉर नेक्स्ट 3-4 इयर्स। आपको अपने, बिकॉज आप अपने प्रोडक्ट्स को, अपनी सर्विसेज को रिफाइन करते रहते हो, ठीक है। तो ऐसे में क्या होता है, आपकी जो वैल्यू प्रोपोजिशन है इट शुड बी रीआइटरेटेड एज वेल। यू नीड टू गो बैक टू योर वैल्यू प्रोपोजिशन। ये जो हमने बात करी कि कस्टमर की पेन पॉइंट्स को देखा, उसकी जॉब डिस्क्रिप्शन को देखा, उसकी एक्सपेक्टेड गेन्स को देखा, उसके बेसिस पे मैं अपने प्रोडक्ट्स को भी रिफाइन कर रहा हूँ, तो मेरी वैल्यू प्रोपोजिशन जो है वो सेम थोड़ा रहेगी। इट शुड कीप ऑन चेंजिंग एज वेल। तो वो रीआइटरेट करते रहना बहुत जरूरी है। और बेनिफिट्स, फोकस ऑन बेनिफिट्स ओवर फीचर्स, ठीक है। अगेन एग्जांपल क्या है इसमें कि भी मेरे फोन में क्वालकॉम प्रोसेसर है, नहीं, इसको हम ऐसे बोलेंगे कि माय फोन इज 4 times faster than the other phone। तो मैंने बेनिफिट की बात करी, फीचर्स की बात नहीं करते। तो वैल्यू प्रोपोजिशन का वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है कि आप अपने बेनिफिट्स को लिखो कि मेरे कस्टमर्स को ये बेनिफिट होंगे। फीचर्स उनको समझ में आने के लिए एक डिफरेंट आप मटेरियल दे सकते हो, बट बेनिफिट प्रोवाइड करो उनको। एंड देन द एडेड वैल्यू, कि आप कस्टमर्स को क्या एडेड वैल्यू दे रहे हो। लेट्स से हम बात करते हैं ना फ्री शिपिंग की, नो एडिशनल कॉस्ट, ऑनगोइंग सपोर्ट, तो ये जो सारे हैं वो एडेड वैल्यूज हैं जो कस्टमर्स को, हो सकता है कि आपका और आपके जो कॉम्पिटिटर है उनके प्रोडक्ट सेम है, बट आप फ्री शिपिंग दे रहे हो या ऑनगोइंग सपोर्ट दे रहे हो, तो वो एक एडेड वैल्यू जो है वो आपका कंपटीशन नहीं दे रहा है, तो दैट इज गोइंग टू बी बेनिफिशियल फॉर यू एंड फॉर योर बिजनेस। सो ये सारे एक्शनेबल टेकअवेज हैं जो आप लोगों को व्हेन यू गो बैक and when you go back to your when you put on your thinking cap, इन points के बारे में सोचिए, then based upon that you decide कि कौन से features होने चाहिए, किन चीजों की basis पे मुझे अपनी value proposition लिखनी है। I'm sure this is going to be very beneficial for you. And with that, we end the presentation, and thank you so much for listening to me, and we can Tanushree, if you want, we can start with the Q&A round as well. Yes, sure. It was really nice to hear, about the value proposition and the points on which they should work when they are thinking about creating a product or a service. So, students, आपकी कुछ questions थे, right? So there was one boy who was asking question. I don't remember his name. सर, आप अपना नेम बताइए बच्चे। प्रदीप कुमार। हाँ जी प्रदीप, बताइए। सर, आप बोल रहे थे कि एक बैंक के कर्मचारी के साथ बात करेंगे और एक पुलिस वाले के साथ बात करेंगे, तो कैसे, ये थोड़ा एग्जांपल दोगे? एक्चुअली मेरा पॉइंट ये था कि आप जब किसी कस्टमर के साथ बात कर रहे हैं, आपकी जो लैंग्वेज है वो बदलेगी। आई शुड लेट्स स्विच टू अनदर एग्जांपल, ओके। जो बैंक का एम्प्लॉय, जो बैंक का मैनेजर है, ठीक है, आपने एक बैंकिंग सॉफ्टवेयर बनाया। इट्स अ हाइपोथेटिकल एग्जांपल, बिकॉज़ बैंकिंग सॉफ्टवेयर ऐसे नहीं चलते, अब तो इन्फोसिस वगैरह अपना सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं, बट आपने एक ऐसी एप्लीकेशन बनाई व्हिच इज गोइंग टू बी बेनिफिशियल फॉर द बैंक। आप बैंक मैनेजर के पास जाते हो, आप उसको बोलते हो कि भी यार दिस इज व्हाट माय एप्लीकेशन इज गोना डू फॉर यू, ठीक है। इट हैज सर्टेन फीचर्स, इट इज गोइंग टू हेल्प यू विद योर क्रेडिट एंड डेबिट्स, इट इज गोइंग टू हेल्प यू with the bank balance statements, it's going to help you with certain things। आप उसकी लैंग्वेज में बात कर रहे हो, आपने क्रेडिट डेबिट की बात करी, आपने बैंक बैलेंस की बात करी, आपने बैलेंस स्टेटमेंट की बात करी, आपने उसको इंटरेस्ट रेट की बात करी। यू सी, आपकी लैंग्वेज अलग है, ठीक है। So Rajiv, here I would just like to interfere and say something. जैसे प्रदीप, अगर I am not wrong, प्रदीप, आपका जो प्रोडक्ट या जो सर्विस आप करना चाहते हो, प्रॉब्लम स्टेटमेंट इज रिलेटेड टू हेल्थ एंड फिटनेस, राइट?
Pradeep? यस मैम। Yes. So Rajiv, उससे अगर आप थोड़ा सा इनको बता दें, because I think he'll be able to relate more. मैं इनकी फील्ड नहीं समझ पाया तनुश्री, किस फील्ड में? Health and fitness. He is going to give coaching related to right diet, to and health tips and fitness tips, because he's a personal trainer. He's working on it and he has a knowledge on diet and nutrition, so he wants to give a better lifestyle. Yes. Okay. अगर इस एग्जांपल की बात करूं मैं, अगर प्रदीप, तो यू आर द लाइफस्टाइल कोच, आई वुड से। आप लोगों को डाइट्स के बारे में बताते हो कि भी हाउ कैन यू हैव अ बेटर लाइफ विद अ गुड डाइट, ठीक है? सर। तो अगर आप एक जिम गोअर है, जो जिम में जाता है बंदा, ठीक है, आप उससे बात करोगे तो आप उसको बोलोगे कि भी दिस इज हाउ इट्स गोना बी बेनिफिशियल फॉर यू। अगर आप ये डाइट लेते हो, ठीक है, तो आपको प्री वर्कआउट आपको ये डाइट लेनी है, आपको पोस्ट वर्कआउट आपको ये डाइट लेनी है। दिस इज व्हाट यू एक्चुअली, आप उसकी लैंग्वेज यूज कर रहे हो, प्री वर्कआउट पोस्ट वर्कआउट, है ना? यस सर, आपने उसकी लैंग्वेज यूज करी। बट अगर आप एक बंदा ऐसा जिसको डायबिटीज है, ठीक है, आपने जब उससे बात करनी है तो आप उसको क्या बोलोगे कि भी सर, आप जब आप खाना खाते हो, खाना खाने से पहले आपको ये वाली चीजें आपको देखनी चाहिए कि भी आपकी डाइट में आपको ग्लूटेन कम करना है, ठीक है, आपको मिलेट्स ज्यादा डालने हैं, ठीक है, आपको डेयरी प्रोडक्ट्स कम करने हैं। तो आपने वहां पे प्री वर्कआउट पोस्ट वर्कआउट की बात तो नहीं करी, ठीक है? दैट इज गोइंग टू बी अ सेपरेट पार्ट। आप उसको बोलेंगे कि वी शुड वॉक डेली फॉर लाइक लेट्स से 45 मिनट्स, आपको 45 मिनट की वॉक करनी है, आपको योगा करना है। आपकी ऑडियंस के अकॉर्डिंगली आपकी जो लैंग्वेज है वो चेंज होएगी। दिस इज व्हाट द पॉइंट इज, ठीक है? तो आपके ऑडियंस जो भी है उसके अकॉर्डिंगली आपकी लैंग्वेज बदल जाती है। आपका प्रोडक्ट सेम रहता है, बट आपकी वैल्यू प्रोपोजिशन के अकॉर्डिंगली आपको ये चीज देखनी है कि वो सबकी समझ में आए। इट्स नॉट गोइंग टू बी फॉर वन सिंगल इंडिविजुअल, इट इज शुड बी फॉर एवरीबॉडी। ओके सर, अब आई सर समझ में। ठीक है, great, thank you. Anybody else who wants to ask questions? It's open. देखिए अभी आप पूछ सकते हैं question, क्योंकि so Rajiv, what is their task for today? Because they have a final day pitching session, so we'll be nominating those who will be completing their task. तो अगर आप आज का task दे दे उनको। मैंने वो जो अभी आपको मैंने वो कैनवस चार्ट बताया ना, उसका जो वैल्यू प्रोपोजिशन कैनवस, मैंने इसलिए बोला था कि व्हेन यू गो बैक टू योर डेस्क, think about those points. मैं ये प्रेजेंटेशन आपके साथ शेयर कर देता हूँ तनुश्री, you can share it with everybody. कि आप इन पॉइंट्स को समझो, अपने कस्टमर्स के बारे में सोचो और उनके पेन पॉइंट्स, उनके सर्विस को जो आपकी सर्विसेज हैं, उनकी जॉब्स क्या हैं, उनके पेन पॉइंट्स क्या हैं, उनको क्या बेनिफिट्स मिलने वाले हैं, एंड कॉरेस्पॉन्डिंगली आपके प्रोडक्ट्स क्या कर रहे हैं, एटलीस्ट उसका एक चार्ट बनाने की कोशिश करें। And then based upon that we will see कि किसने सबसे अच्छा चार्ट बनाया है, who is able to understand the audience and who is able to understand his or her product as well or service as well. So that is for me is a good task. Great. So I request all the students to do this task कि आपने वापस जाकर जो भी आपका प्रॉब्लम स्टेटमेंट आपने आइडेंटिफाई किया है उस पे जाके आप लोग आज वैल्यू प्रोपोजिशन कैनवस बनाएंगे। राजीव विल बी शेयरिंग दी प्रेजेंटेशन विद अस, तो आपके पास एक बेंचमार्क हो जाएगा, आप उसको देख सकते हैं, रेफर कर सकते हैं। अभी के लिए यूटिलाइज दिस टाइम, आस्क क्वेश्चंस इफ यू हैव, कि आपको पूरे सेशन में से। ओके विकास, प्लीज आस्क। Hello ma'am, my name is Vikas from Hisar. So my basic idea is जैसे कि every company, वो beverage company ये करती है कि वो केमिकल लेती है USA के सेम प्लस सोडा वाटर सेल करती है, चाहे आप उसे माउंटेन ड्यू में ले लो, कोका कोला ले लो, सेम आर फ्लेवर्स, बट नॉट इन जैसे कि हमारे देसी जो फ्लेवर थे, काला खट्टा हो गया, जिंजर फ्लेवर हो गया, ओल्ड टाइप, मतलब वो नहीं हो रही। दैट्स इज कि हम ये स्मॉल लेवल पे मतलब बिल्कुल टमाटो टाइप हम कर सकते, टमाटो सोडा ये सब मिक्सचर वो। तो विकास आपका क्वेश्चन क्या है बच्चा? क्वेश्चन क्या है विकास आपका इससे रिलेटेड? टू टैकल मतलब कंज्यूमर टू कन्वर्ट टू बिग ब्रांड टू माय ब्रांड। ओके विकास आपने अगर मैं बात करूं, मतलब वी टॉक अबाउट दीस थिंग्स, अगर आप हमारी वेबसाइट पे भी जाते हैं ना, हमने ब्लॉग में बहुत सारी केस स्टडीज डाली हुई है, ठीक है?
तो हमने रिसेंटली केस स्टडी देखी महिंद्रा की, ठीक है। तो महिंद्रा जो है, आपने देखा होगा महिंद्रा XUV 700 को लेके आया, बट उससे पहले उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपने ऑडियंस को समझा कि मेरी ऑडियंस क्या चाह रही है, ठीक है। ऑडियंस, यंग ऑडियंस जो है, दे वांट वेरी गुड कार जिसमें बहुत सारे फीचर्स हो, सनरूफ हो, अच्छा म्यूजिक प्लेयर हो, एंड इट शुड बी काइंड ऑफ SUV आल्सो, कि भी मैं किसी भी जगह पे लेके जा सकूं। सो दोस काइंड ऑफ फीचर्स दे स्टडीड एंड बेस्ड अपॉन दैट they launched XUV 700, Scorpio N और बाकी सारी जो गाड़ियां उन्होंने लॉन्च करी आफ्टर लर्निंग अबाउट द कस्टमर, ठीक है। आप बोल रहे हो कि आपके पास क्या है, आपके पास प्रोडक्ट है ऑलरेडी, आपने प्रोडक्ट बना लिया, अब वो कस्टमर क्या है, उनको वापस अट्रैक्ट करने की बात हो रही है यहाँ पे, राइट? यस। बिकॉज इस केस में मुझे लगता है कि आपको बहुत ज्यादा काम करने की जरूरत पड़ेगी उस कस्टमर ऑडियंस तक पहुंचने की, ठीक है। और उसको कैसे एजुकेट कर पाओगे आप, ठीक है। आप उसको, जैसे आपके प्रोडक्ट्स अगर ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स हैं तो उसके हेल्थ बेनिफिट्स क्या है, ठीक है। हम जितना मर्जी बोल रहे हैं कि भी मेरा प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, बट अनटिल अनलेस आई गेट द रिकमेंडेशंस फ्रॉम पीपल, ठीक है, जब तक लोग मेरे को वर्ड ऑफ माउथ पब्लिसिटी नहीं देना शुरू करते तब तक ये चीजें नहीं चलेंगी। आपको पता है कि जो कोका कोला लॉन्च हुई थी, हम कोका कोला की बात करें, पहले साल में उन्होंने मुश्किल से आई बिलीव टोटल 17,000 बॉटल्स बेची थी पूरे साल में, ठीक है, इफ आई रिमेम्बर करेक्टली, बट कुछ एक फ्यू थाउजेंड्स में थी, ठीक है। बट देन नेक्स्ट ईयर जो सेल थी वो बढ़ गई, क्योंकि लोगों के पास वो चीजें पहुंचनी शुरू हो गई। उन्होंने फ्री सैंपल्स भी दिए कि आप ट्राई करके देखो आपको कैसा लग रहा है, आपने लोगों से बात करी, आपने इन्फ्लुएंसर्स को पकड़ा, आपने उन लोगों को पकड़ा जो एक्चुअली उस जो टेस्ट को डेवलप करा के लोगों के दिमाग में डालते हैं कि यार ये चीज बहुत अच्छी है, ठीक है। तो हमारे यहाँ इंडिया में भी होता है, आपने देखा होगा कि जो संजीव कपूर है, जो खाना खजाना वाला संजीव कपूर, वो खाना बनाता है, बट साथ में ना वो बहुत सारी चीजों को, प्रोडक्ट्स को वो उसकी पब्लिसिटी भी कर रहा होता है कि यार ये टाटा संपन्न के जो राजमा है वो बहुत अच्छे हैं, बिकॉज क्योंकि टाटा संपन्न उसके पास पहुंचा कि भाई मेरे प्रोडक्ट को अपने मार्केट में, अपने ऑडियंस के सामने प्रेजेंट करो। उसके बाद से टाटा संपन्न की जो वैल्यू है या उसकी जो मार्केट है वो बढ़नी शुरू हो गई। तो आई वुड नॉट से कि यू गो टू संजीव कपूर, ऑल आई एम सेइंग इज आप उस ऑडियंस के पास पहुंचने के लिए आपके पास क्या क्या रास्ते हैं सोचिए। सोशल मीडिया आपके पास है, इन्फ्लुएंसर्स आपके पास हैं, उन मतलब नॉट एवरीबॉडी इज चार्जिंग लैक्स ऑफ रुपीज यार, 1000 रुपए लेके भी कोई इन्फ्लुएंसर जो है वो काम करता है, चाहे उसकी ऑडियंस 1000 बंदों की क्यों ना हो। तो आपको वो छोटे छोटे जो की पॉइंट्स हैं उनको देखते हुए अपने ऑडियंस के पास पहुंचना है। दैट इज हाउ यू विल बी एबल टू गेट दैट ट्रैक्शन। और ये इट्स गोइंग टू बी अ लॉन्ग जर्नी, ये एकदम से नहीं होएगा, ये बात याद रखिए अपनी। सर व्हाट इफ आई प्रोवाइड बिल्कुल जस्ट वो 250 ml bottle in 5 rupees, but I saw in America some peoples do water bottle free, but labeling type जैसे न्यूज़पेपर एडवर्टाइजमेंट होता है, चार्जेस करते हैं, वो उस पे चिपकाते हैं एंड सेल फ्री वाटर एनजीओ टाइप। बट व्हाट इन इंडिया आई विल प्रेफर, जैसे हम 250 ml माय ड्रिंक वाटर, बट हाफ पार्ट माय वो कंपनी नेम, half part is like newspaper, anyone can advertisement, so bottle price is cheap, so for people जी दैट इज अ वेरी गुड स्ट्रेटजी आई वुड से विकास, बिकॉज आपको बेसिकली क्या करना, जो आप बेसिकली एक तरीके से आपका इन्वेस्टर हो गया, ठीक है, या आपका एडवर्टाइजर हो गया, क्योंकि वो उसने आपके साथ आपकी कॉस्ट शेयर कर दी, बिकॉज आपने वो जो आपने हाफ स्पेस उसको दिया एडवर्टाइज करने के लिए, उसके बेसिस पे वो भी लोगों के पास पहुंच रहा है, ठीक है, आप भी पहुंच रहे हो, तो दोनों का बेनिफिट वहां पे जो है वो मीट हो गया। तो अगेन ये एक अच्छी स्ट्रेटजी है, इसको यूज करना, बट मेरा पॉइंट ये है कि आपको अपने ऑडियंस को समझ के उनके पास पहुंचने के जो तरीके हैं वो सोचने पड़ेंगे पहले, ठीक है, चाहे वो सोशल मीडिया है, चाहे वर्ड ऑफ माउथ पब्लिसिटी है। अब कहीं अगर आप स्टॉल्स लगाते हो, आपको लगता है यहाँ पे बहुत सारे लोग आते हैं यार, तो लेट्स पुट अ स्टॉल देयर, वहां पे जाके लोगों को दिखाऊं कि भैया ये तो ट्राई करो, इट्स जस्ट 5 रुपीज, अब ट्राई करके देखो, ठीक है। हर कोई बंदा ना 5 रुपए खर्चने में टेंशन नहीं लेता मुझे लगता है आजकल, तो अगर वो 5 रुपए की बॉटल पिएगा, उसको लगेगा इट्स अ गुड थिंग, तो नेक्स्ट 5-10 बॉटल्स खरीदने को रेडी हो सकता है। तो आपको लोगों तक पहुंचना है इससे पहले कि लोग आपके पास पहुंचे। हर एक नए प्रोडक्ट का चैलेंज यही है,
हर एक नई सर्विस का चैलेंज यही है, आपको उन लोगों के पास पहुंचना है जो आपके बारे में बात कर सकें, और वो तभी पॉसिबल होता है जब आप लोगों के बीच में जाके बात करें इन चीजों के बारे में। आपको खुद पहले बाहर पहुंचना पड़ेगा विकास। Thank you, sir, for guiding us. वेलकम विकास। Great. So I hope आपको वैल्यू प्रोपोजिशन के बारे में बहुत अच्छे से समझ में आ गया। उसको और भी ज़्यादा एक्सप्लेन करने के लिए रेफरेंस वील बी शेयरिंग द प्रेजेंटेशन विथ यू ऑल। I request all the students to please start following SAC India on our Instagram and other social media handles to get more such knowledge. हमारे podcast है, हमारे social media पे भी time to time हम startup stories और blogs हम लोग लिखते रहते हैं, share करते रहते हैं knowledge and other informations also. Right? Yes sir. Ma'am? Yes. हाँ जी. मैम इसको इसमें मेडिकल लाइन में कैसे एक्सप्लेन करें? मेडिकल लाइन में आपका प्रोडक्ट क्या है, थोड़ा सा एक्सप्लेन करोगे? प्रोडक्ट या सर्विस क्या है? मैं मेडिकल स्टूडेंट हूँ, इसके लिए पूछ रहा था मैं कैसे एक्सप्लेन करना पड़ेगा। ओके सो सागर सर बेसिकली क्या है ना, वैल्यू प्रोपोजिशन, सॉरी टू कट यू ऑफ तनुश्री। नो राजीव, आई वाज जस्ट हैंडलिंग इट। यस माय पॉइंट इज एक्चुअली सागर, जब भी किसी वैल्यू प्रोपोजिशन की बात करते हैं ना, तो वैल्यू प्रोपोजिशन इज अबाउट अ प्रोडक्ट और अ सर्विस और अ कंपनी, ठीक है? तो मेडिकल लाइन में भी आपने एक अच्छा कोई प्रोडक्ट बना लिया, लेट्स से एक मेडिसिन बना ली, उसकी वैल्यू प्रोपोजिशन हो सकती है, ठीक है? आपने एक ऐसी सर्विस दी, आप फिजियोथेरेपिस्ट हो, आप एक ऐसी सर्विस दे रहे हो जो बहुत कम लोग देते हैं, उसकी एक वैल्यू प्रोपोजिशन हो सकती है। यहाँ पे ऐसे फाइजर जैसी आपने कंपनी बना ली जो मल्टीपल मेडिसिन बना रही है टू हेल्प पीपल फाइट अगेंस्ट ऑल दीज डिजीजेस, उसकी एक वैल्यू प्रोपोजिशन हो सकती है। तो आपको वैल्यू प्रोपोजिशन इज नॉट फॉर एन इंडिविजुअल, it is always for a product or a service which is being offered by an individual or a company. सागर समझ में आया बच्चे? यस सर, समझ में आ गया सर। जैसे सर पीसीएम हो गया सर, पेंटापेराजोल हो गया, डिफरेंट टाइप की मेडिसिन हो गई सर ये। एग्जैक्टली, उनके बेनिफिट्स आपको पता है कि यार इसको खाने से, पीसीएम खाने से आपका फीवर ठीक हो जाता है, या सेरिडॉन खाने से आपका सर दर्द ठीक हो जाता है, तो बेनिफिट्स है ना। एस्पिरिन, डिस्प्रिन, डिफरेंट टाइप की मेडिसिन हो गई सर। जी, तो वैल्यू प्रोपोजिशन किसी प्रोडक्ट की, किसी मेडिसिन की हो सकती है, किसी इंडिविजुअल की वैल्यू प्रोपोजिशन डिफाइन करना वो काफी डिफिकल्ट हो जाता है। yes Pradeep, you had asked a question, आपने रेज हैंड किया था। हाँ जी मैम मेरा एक क्वेश्चन है, और जैसे आज के टाइम एनर्जी ड्रिंक का अच्छा खासा चलन चला हुआ है जी, जैसे रेड बुल, स्टिंग या चार्ज अप जैसे एनर्जी ड्रिंक आते हैं, तो ऐसे ही अपना खुद का एनर्जी ड्रिंक की कोई कंपनी डालें तो उसके लिए गवर्नमेंट फंड वगैरह कुछ देती है मैम? डेफिनेटली देती है, बट वही प्रदीप द थिंग इज कि इसके बारे में वी कैन डिस्कस इन 101, है ना? आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, मैं उसके बारे में आपको सारी इंफॉर्मेशन बता दूंगी, है ना? सी, गवर्नमेंट इज प्रोवाइडिंग वेरियस स्कीम्स फॉर आप लोगों के लिए। अगर आपने स्मॉल बिजनेसेस सेटअप करने हैं, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट सेटअप करना है, देयर आर स्कीम्स, बट वो सभी स्कीम्स का लाभ उठाने के लिए आपको कुछ स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे। यस मैम। ठीक है, जिसमें से सबसे पहला स्टेप अभी हम लोग जो आइडिया कृति का प्रोग्राम कर रहे हैं, दैट विल हेल्प यू टू बिल्ड अ प्रॉपर प्रोजेक्ट। अगर आप किसी भी आइडिया पे काम कर रहे हैं, उसको कैसे डेवलप करना है, उसके स्टेजेस क्या क्या है, ये आपका पहला स्टेप है। इससे आपको पता चलेगा कि आपने अपने प्रोजेक्ट को, आइडिया को किस तरीके से पेश करना है, क्या आपकी प्रॉब्लम स्टेटमेंट होगी, आप क्या चीज सॉल्व करना चाहते हैं, उसकी वैल्यू क्या होगी आपके कस्टमर्स के लिए, उसके लिए आपको बिजनेस मॉडल कैसे बनाना है। ये सारी चीजें आपको सिखाई जाएंगी इन 5 दिनों में। जब आप इस चीज को डेवलप कर लोगे, क्रिएट कर लोगे, तो आपके पास एक प्रोजेक्ट होगा जो आप आगे किसी को भी दिखा सकते हैं या किसी से भी सपोर्ट ले सकते हैं, चाहे वो गवर्नमेंट एजेंसी है, चाहे वो इन्वेस्टर्स हैं। आप उनके पास तभी जाओगे जब आपके पास हाथ में कुछ प्रोजेक्ट होगा दिखाने के लिए या बताने के लिए। यस मैम। यस मैम। Yes. Rajiv, do you want to answer this question?
question? No, that's your area of expertise, Tanushree, because I do not deal in the startup, so I cannot comment on that. But yes, I would say कि there are benefits which are being offered. बहुत सारे benefits government दे भी रही है, और मेक इन इंडिया हो गया, स्टार्टअप इन इंडिया हो गया, ये सारे अलग अलग इनिशिएटिव्स हैं. बट आपको वहाँ पहुँचने के लिए सबसे पहले एक जर्नी है, और जर्नी में आई थिंक सैक बहुत हेल्प कर रहा है सारे स्टार्टअप्स की. सो जस्ट कनेक्ट विद दीज गाइज एंड दे कैन हेल्प यू अ लॉट. Yes, and we have Jatin. This is the last question we'll be taking, and then we'll be closing the session. Yes, Jatin, please. गुड इवनिंग मैम. जो हाँ जी, मेरा जतिन, बोलो. स्टार्टअप आइडिया है उसमें, मेरा जो स्टार्टअप आइडिया है उसके में जो मैकेनिक सर्विस होती है बाय रोड, मतलब कोई किसी की गाड़ी पंक्चर वगैरह हो जाती है या फिर खराब हो जाती है बीच रास्ते में, तो बाय एप्लीकेशन वी कैन कॉन्टेक्ट टू मैकेनिक्स, जो मतलब रोड पे आएगा टोइंग व्हीकल, या फिर अगर गाड़ी ज़्यादा ही खराब है तो टोइंग व्हीकल के द्वारा उसको शॉप तक लेके जाएगा और ठीक करेगा. या फिर पंक्चर वगैरह तो स्पेशली टू व्हीलर जिनमें कोई हमारे पास ऑप्शन नहीं होता अभी उसको खींचने के अलावा, तो वहाँ पे हम अपनी सर्विस दे सकते हैं. पर ये मैम कंज्यूम कन्विंस कैसे करूँगी आप मेरे साथ वर्क करें? जतिन, इसके लिए ना सबसे पहले क्या होता है, आपको एक एरिया डिफाइन करना होता है. ठीक है. सो लेट्स से आप कहाँ से हो अभी आप, जतिन? सर मैं करनाल के छोटे से गांव. ठीक है. तो अगर आप अपने गांव में हो, प्रॉब्लम पता है क्या है हमारे गांव में, कि लोग इतने एजुकेटेड नहीं है. ठीक है. तो जिस बंदे को मोबाइल ऐप चलाना नहीं आएगा, उसको ये समझ में भी नहीं आएगा कि भाई इस ऐप के ऊपर मुझे अगर किसी ने इंक्वायरी भेजी है तो मुझे उस इंक्वायरी को देखना कैसे है, वहां पे जाना कैसे है. आप एक लर्निंग कर्व देख रहे हो यहाँ पे बहुत सारी, क्योंकि मैकेनिक का काम कर रहा है हमारे इंडिया में, तो ये चैलेंज है ना कि जो मैकेनिक का काम कर रहा है वो बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा होगा क्या? नहीं होगा. ठीक है. तो वहां पे एक कंसर्न हमारे पास आ जाता है कि भी क्या उस बंदे के पास इतना IQ है वो एक एप्लीकेशन को उसके एप्लीकेशन में काम कर सके, उसको समझ पाए कि क्या मेरे पास अलर्ट आ रहा है, कहाँ से आ रहा है. तो बेसिकली एक जब आप उस एरिया को डिफाइन करके उसमें एक, हमेशा बोलते हैं ना प्रोटोटाइप, आपको एक प्रोटोटाइप डिफाइन करना है जतिन. उस प्रोटोटाइप को चला के देखो कि क्या मैं इस एरिया के 10 मैकेनिक्स के साथ काम कर पाया. अब प्रॉब्लम क्या है, गांव के अंदर, गांव तो बहुत छोटे से होते हैं हमारे. ठीक है ना. तो गांव में अगर किसी को प्रॉब्लम है तो वो फोन करके बोलेगा भाई आजा, प्रॉब्लम है, वो फिक्स करने पहुंच जाएगा. अब वो गांव से 10 किलोमीटर दूर प्रॉब्लम हुई किसी को. ठीक है. हमने प्रॉक्सिमिटी देखी कि यार इसके पास में ना ये एक लड़का है जो मैकेनिक है और ये 10 किलोमीटर दूर है यहाँ से, ये जो SOS है जो मेरे को एक मैसेज भेजना है वो उस बंदे के पास जा रहा है ऐप पे. बट क्या वो बंदा उसको एक्सेप्ट कर पा रहा है, वो जाके उस हमारी जो रिक्वायरमेंट है उसको मीट कर पा रहा है, उसको देख पा रहा है. ये एक चैलेंज आपको एक लोकल लेवल पे आपको 10, 20, 25 किलोमीटर के एरिया में इसको प्रोटोटाइप के तरीके से चला के देखना पड़ेगा कि क्या ये चीज चल पा रही है. नहीं तो मुझे जो इसमें जो एक्चुअली जो लर्निंग कर्व है ना वो बहुत बड़ा दिख रहा है, क्योंकि मैकेनिक्स के साथ ये चीज कर पाना, क्योंकि अगर कोई मैकेनिक मेरे पास, लेट्स से आप ही के पास लेट्स से 10 मैकेनिक है. ठीक है. और आप बोलते हो कि मैं इस 50 किलोमीटर के एरिया को कवर करूंगा, देन इट इज इजियर बिकॉज आप टेक्निकल जानते हो. आपको बंदे को बोलना है भाई इस लोकेशन पे जा, ये चीज है, ये गाड़ी है, वहां पे जाके इसको ठीक करके आ जा. यू कैन मैनेज दोज मैकेनिक्स. बट अगर हम एक इंडिविजुअल मैकेनिक से एक्सपेक्ट करें कि वो इस चीज को समझ पाएगा कि मुझे वहां पे जाना है, इस चीज को देखना है, फिर उससे पैसे लेने हैं तो किस तरीके से लेने हैं, ये ऑल एक चैलेंज बन जाएगा. तो इसमें आपको जो आपका बिजनेस मॉडल है इसको भी एक बार रीथॉट करने की जरूरत है, रीथिंक करने की जरूरत है, आई शुड से. सर इनिशियली तो हम कंट्रोल रूम सेटअप कर सकते हैं ना छोटे एरिया के लिए. मैंने आपको वही बोला ना कि आपको एक प्रोटोटाइप चला के देखना पड़ेगा कि 20, 30, 50 किलोमीटर के लिए कि ये मैंने कर लिया, अब ये यहाँ पे काम कर रहा है तो कैन आई एक्सपेंड इट, और एक्सपेंड करने के लिए मेरा खर्चा क्या है, क्या मुझे एक और कंट्रोल रूम सेट करना पड़ेगा किसी और सिटी में. तो वो जो सारी चीजें हैं जब आप इनको राइट डाउन करोगे ना कि मेरे चैलेंजेस क्या हैं, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग मेरे सॉल्यूशंस क्या हैं, तभी आपके पास एक बेटर अंडरस्टैंडिंग, बेटर विजन आएगा कि मेरा बिजनेस किस डायरेक्शन में जा सकता है 2 साल के बाद.
क्योंकि पर्पस ऑफ बिजनेस इज टू मेक मनी, राइट? ऐसा तो नहीं कि भी हम फ्री में काम करना चाहते हैं कि 2 साल बाद भी मेरे पास पैसे ना हो। तो पर्पस इज टू मेक मनी, बट क्या वो मनी आपकी पॉकेट से लग रही है अभी? दैट्स फाइन, बट क्या 2 साल बाद वो बिजनेस प्रॉफिटेबल हो जाएगा? ठीक है, इन सब चीजों के ऊपर आपको डिस्कशन करना पड़ेगा। अभी विकास ने लिखा है कि हैव अ सॉल्यूशन फॉर जतिन तो आप विकास के साथ कनेक्ट कर सकते हैं और उससे डिस्कस कर सकते हैं। सॉल्यूशन इज Vikas, प्लीज कनेक्ट इंडिविजुअली बच्चे, ये फोरम पे नहीं, आप ग्रुप से नंबर लेके आप कनेक्ट कर सकते हैं जतिन के साथ। इज दैट ओके? I would request the outreach coordinators of various, मुझे लगता है हिसार, yes, जतिन ने अपना नंबर दे दिया है, तो विकास यू कैन कनेक्ट विद जतिन, आप नंबर यहाँ से पिक करके आप अलग से कनेक्ट कर सकते हैं। So I will not take much time of Rajiv, as so this was the end of our session. If anybody has any other question, आप हमें ग्रुप में जो आइडिया कृति 3.0 का ग्रुप है उसमें आप क्वेश्चंस पुट कर सकते हैं। We can connect you with the mentors. You know, we can ask your questions to them. And yes, the task for today is बच्चे सर ने बताया है कि वैल्यू प्रोपोजिशन कैनवस, जो प्रेजेंटेशन में वैल्यू प्रोपोजिशन कैनवस आपको बताया गया, गो टू योर प्रॉब्लम स्टेटमेंट, जो आपने प्रॉब्लम स्टेटमेंट कैनवस रेडी किया है उसका अब आप बनाइए वैल्यू प्रोपोजिशन कि व्हाट वैल्यू योर प्रोडक्ट और सर्विस विल बी गिविंग योर कस्टमर्स। आपके जो कस्टमर्स हैं, जो कस्टमर सेगमेंट आपने चूज किया है, उनके लिए आप वैल्यू क्या क्रिएट करने वाले हैं, राइट? एनी अदर क्वेश्चंस यू कैन ऑलवेज कॉन्टैक्ट अस, हम सबके नंबर्स आपके ग्रुप्स में हम एडेड है, यू कैन ऑलवेज आस्क अस द क्वेश्चंस। थैंक यू राजीव, थैंक यू सो मच फॉर दिस लवली सेशन, you know, and so enriching today. It was really enriching for everybody. So thank you so much for inviting Tanushree, and everybody, you know, keep digging. आपके startups के ideas बहुत unique हैं, so have faith in yourself और काम करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, and work with SAC. That's very important. Take care. Bye bye. Thank you, sir. Thank you, ma'am. Good evening. I'll be ending the session now. Thank you, everyone. I would be waiting for all the tasks in the group. Bye. Good evening, ma'am. Good evening, sir.